दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 313, 313, 314। चलें स्टार्ट करें। थ्री 313 आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में। ट्रांजिशनल प्रोविजंस की बात करता है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन उपबंध की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 313 एंड 314 आर्टिकल सेज अबाउट provision for protection of existing officers of certain services. So 314 अनुच्छेद बताता है कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। तो ठीक है, चलें पढ़ती हूँ। अनुच्छेद 313 अनुच्छेद संक्रमणकालीन उपबंध क्या है? 313 आर्टिकल से अबाउट ट्रांजिशनल प्रोविजंस। 313 article says about transitional provisions until other provision is made in this behalf under this constitution. All the laws in force immediately before the commencement of this constitution and applicable to any public service or any post which continues to exist after the commencement of this constitution. As an all India service or as service or post under the union or a state shall continue in force so far as consistent with the provisions of this constitution. 314 constitution's article says about provision for protection of existing officers of certain services repealed by the Constitution 28 Amendment Act 1972 S3WE 29/8 1972। अब मैं पढ़ लेती हूँ चैप्टर सेकेंड, पब्लिक सर्विस कमीशंस। पब्लिक सर्विस कमीशंस क्या है? अध्याय 2, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति यानी लोक सेवा आयोग की परिभाषा या लोक सेवा आयोग के बारे में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में मैं पढ़ूंगी। 315 आर्टिकल सेज अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। Number 1, subject to the provisions of this constitution. 315 article says about public service commissions for the union and for the states. Number 1, subject to the provisions for this article, there shall be a public service commission for the union and a public service commission for each state. Number 2, two or more states may agree that there shall be one public service commission for that group of states, and if a resolution to that effect is passed by the house or where there are two houses by each house of the legislature of each of those states, Parliament may by law provide for the appointment of a joint state public service commission bracket referred to in this chapter as joint commission to serve the needs of those states. Number 3, any such law as aforesaid may contain such incidental and consequential
provisions as may be necessary or desirable for giving effect to the purposes of the law. Number 4, the Public Service Commission for the Union, if requested so to do by the governor or of a state, may with the approval of the president agree to serve all or any of the needs of the state. Number 5, references in this constitution to the Union Public Service Commission or a state public service commission shall unless the context otherwise requires be construed as references to the commission serving the needs of the union, or as the case may be the state as respects the particular matter in question. अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 313 बताता है संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। जब तक इस संविधान के अधीन इस निर्मित अन्य उपबंध नहीं किया जाता है, क्या कहा जा रहा है कि जब तक इस संविधान के अधीन इस निर्मित अन्य उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी लोक सेवा या किसी ऐसे पद को जो इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू हैं, वहाँ तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहाँ तक वे इस संविधान के उपबंधों से संगत हैं, यानी इनके अनुकूल हैं। नंबर 3, अनुच्छेद 314 बताता है कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। इस संविधान का 28वां संशोधन अधिनियम 1972 की धारा 3 द्वारा 29/8/1972 से रिपील्ड किया गया है। संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 की धारा 3 द्वारा 29/8/1972 से निरसित। कौन सा आर्टिकल? 314 आर्टिकल। अब मैं पढ़ती हूँ अध्याय 2, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के लिए जो आर्टिकल है वो 315 है, जिसमें क्या होगा, लोक सेवा आयोग जो कमीशंस हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड स्टेट कमीशंस की स्थापना की जाएगी, उसकी बात की जा रही है। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी संघ के लिए, यूनियन के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। नंबर 2, 2 या अधिक राज्य करार कर सकेंगे, यानी आपस में समझौता कर सकेंगे, आपस में सहमति बना सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, या जहां 2 सदन हैं, यानी विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद की बात की जा रही है, वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है। कौन से? इस संकल्प को, कि राज्यों के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, मतलब इन दोनों सदनों से ये संकल्प पास कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयुक्त की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी, यदि जिन राज्यों में 2 मंडलीय सदन हैं, 2 सदन हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, अगर उन दोनों के द्वारा उस संकल्प को पास कर दिया जाता है, तब क्या होगा, संसद उन राज्यों की सहमति के और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा, कानून के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकेगा, जिसे इस अध्याय में संयुक्त आयोग कहा गया है, नियुक्ति कर उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 3, पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे
जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों। नंबर 4, यदि किसी राज्य का राज्यपाल, क्या कहा जा रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वे राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। नंबर 5, इस संविधान में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देशों का ये अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे आयोग के प्रति निर्देश हैं जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में यथास्थित संघ की या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये नंबर 315 में इसको 5 पॉइंट्स में कवर किया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि क्या होगी उसके बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।